Hello students, you all are welcome in English class and today we will start with one of the chapters in your English course book, and the name of the chapter is The Portrait of a Lady. This chapter or this portion has been taken from your Hornbill book, and the name of the chapter is Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. I am Dr. A. Zahra and today I am going to conduct this class, and you can sit very easily and listen to the story. It's a very beautiful story which depicts the bonding between two persons, grandparent and a grandson. Okay. And in this story you will see the various levels, the various interactions between the two, the grandmother and grandson. Here the grandson is the writer himself, Khushwant Singh, and he has written about his grandmother and what all interactions happened between them, and what all things the grandmother wanted him to do, what he went through. Everything is been depicted in this chapter. So students, let me very first give you a very brief introduction about the author Khushwant Singh, okay, and then we will move on with the chapter. Khushwant Singh, he was an Indian author, lawyer, diplomat and journalist. He was politician too, and he experienced a lot of things during the partition of India, which inspired him to write a novel. This novel is well-known novel, that is Train to Pakistan in 1956. He had been awarded with various awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Punjab Ratan Award, and among other awards he had received Sulabh International Award for the Most Honest Indian of the Year. This was a very brief introduction about Khushwant Singh. As you can see the picture of the author also. So students, we will start with the chapter and we will go through the various things that happened in this chapter. So, the portrait of the lady. The Portrait of the Lady, of a Lady by Khushwant Singh. Portrait means it is a type of drawing, or it is a type of picture or imagination. Here the meaning comes as imagination, that is portrait of a lady. एक लेडी का portrait कैसे होना चाहिए, एक लेडी किस तरह से है, लेडी यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ग्रैंड मदर है ऑथर की. So we will see and we will read the chapter. Students, in this chapter I have read the entire chapter, and with the reading, wherever there are hard words, its meaning is written in bracket with red. So you will feel it easy, find it easy to connect with the things. You can very easily understand the entire portion that is there in the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece. Mantelpiece, it is a structure, as you can see in the figure, it is a structure of wood और स्टोन अराउंड अ फायरप्लेस. फायरप्लेस जहाँ आग जला के तापा जाता है, उस तरह का एक फायरप्लेस होता है, और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना होता है, चाहे वो लकड़ी का हो या पत्थर से बना हुआ होता है, उसको आप मैंटल पीस कहते हैं. तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर को उन्होंने जब भी देखा है, वो हमेशा उनको एक ओल्ड वुमेन के फॉर्म में ही दिखी हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो पिछले 20 साल से उनके चेहरे पे वो झुर्रियाँ हैं, और वो पिछले 20 साल से उनके सामने, वो अपनी आंखों के सामने उनको ऐसे ही देख रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ वेरी ओल्ड.
उनको कभी कभी लोगों से सुनने को भी मिलता है कि पहले कुछ ज़माने पहले या जब वो बहुत यंग थी वो बहुत प्रिटी थी, बहुत सुंदर थी और उनको एक हस्बैंड भी थे, क्योंकि ऑथर जो हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा है और बहुत समय जब से वो देख रहे हैं अपने ग्रैंडमदर को एक ही फॉर्म में देख रहे हैं, एक ही तरह के अपीयरेंस में देख रहे हैं, तो उनके लिए बिलीव करना ये बहुत मुश्किल था कि उनके एक हस्बैंड भी थे और वो बहुत प्रिटी हुआ करती थी। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, ओके। और ग्रैंडफादर का क्या पोर्ट्रेट था, एक पोर्ट्रेट टंगा था, एक पिक्चर टंगी थी, एक फिगर टंगा था, फोटो, और वो मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. तो उस पिक्चर में राइटर को उनके ग्रैंडफादर कैसे दिख रहे थे, बिल्कुल पूरा जो एक कपड़ा पहना था उन्होंने, बहुत लूज फिटिंग का कपड़ा है और उसके ऊपर एक टर्बन यानी कि एक पगड़ी बंधी हुई है और एक लंबी सी बड़ी सी दाढ़ी है जो बहुत लंबी है, जो चेस्ट तक आती है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उस पिक्चर में भी वो उनको ऐसा लग रहा था कि वो 100 साल के होंगे। इस तरह का वो पिक्चर में, उस तरह की उस फोटो में उन्हें अपने ग्रैंडफादर नजर आए। He did not look the sort of person who would have a wife or children. तो उसमें देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनके वाइफ बच्चे होंगे, बट कैसा लगता था उस पिक्चर में, उनके ग्रैंडफादर कैसे दिखते थे, ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे छोटे बच्चों के वो दादा हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे उनके, उनके बच्चे वाली एज नहीं लग रही थी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक फ्रेज दिया हुआ है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो अब अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर वो आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो कमेंट कर रहे हैं ग्रैंड मदर के ऊपर, ग्रैंड मदर के बारे में वो बता रहे हैं कि मतलब जहाँ तक ग्रैंड मदर का सवाल है कि वो बहुत यंग और प्रेटी हुआ करती थी, तो ये अनबिलीवेबल था ऑथर के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इसका मतलब अनबिलीवेबल बाय ऑथर, दैट वंस हिज ग्रैंड मदर वॉज यंग प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। तो वो बहुत इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, बिलीव नहीं कर पा रहे थे ऑथर कि उनकी ग्रैंड मदर कभी बहुत यंग और प्रिटी नहीं होंगे। क्यों ऐसा वो सोचते हैं, उनको हमेशा से अपनी ग्रैंड मदर एक ही अपीयरेंस में नजर आई, रिंकल्ड चेहरा और लाइक एन ओल्ड वुमन। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified. ठीक है, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर हमेशा ये बताती थी कि वो गेम्स खेलती थी जब वो चाइल्ड थी, और बहुत ये सब सुन के उनको ऑथर को absurd लगता था, मतलब बहुत अनबिलीवेबल लगता था, बहुत अटपटा लगता था, और लगता था कि ग्रैंड मदर और गेम खेलती थी एज अ चाइल्ड, फुलिश जैसा लगता था। So that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables and short stories. Fables, तो fables are short stories with some moral, ठीक है ना। फेबल का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज विद सम मॉरल। तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि जब उनको ये सुनने को मिलता है अपने ग्रैंड मदर से कि वो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलती थी छोटे समय में, और वहाँ पे वो बहुत बढ़िया से वो छोटे बच्चों की तरह वो बिहेव करती थी, तो उनको बहुत फुलिश लगता था, बहुत मानने लायक बात नहीं लगती थी, और उनको ऐसा लगता था कि वो किसी एक नोबेल पर्सन से या किसी पुराने किसी प्रॉफिट से वो कोई फेबल सुन रहे हैं, मतलब एक अनबिलीवेबल कहानी। फेबल्स क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जिसमें छोटे से मॉरल होते हैं, और वो मॉरल्स को सुन के, उन छोटी कहानियों को सुन के हम अम्यूज्ड हो जाते हैं, और तो वो सच्ची नहीं लगती हमको पता होता है वो सच्ची नहीं होती हैं, लेकिन उससे हम अम्यूज्ड होते हैं, एंटरटेन्ड होते हैं। तो बिल्कुल ऑथर को ग्रैंड मदर की वो बातें ऐसी नहीं लग रही थी कि वो सच्ची बातें हैं, उनको ऐसी लग रही थी जैसे कि ये बातें जो हैं वो ग्रैंड मदर जो कर रही हैं वो फेबल्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी शॉर्ट स्टोरीज हैं जिसमें सच्चाई तो नहीं है लेकिन उससे हमें मॉरल मिल सकता है। She had always been short and fat and slightly bent. Okay, so she was always short और वो bent थी, fat और slightly bent थी वो, ठीक है, slightly वो bent थी।
Her face was a criss-cross of wrinkles. Her face was criss-cross of wrinkles. ठीक है, criss-cross of wrinkles यानी कि बहुत सारे उसमें झुर्रियाँ थी. Face was very, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी, बहुत ओल्ड थी तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको झुर्रियाँ दिखती थी. बच्चे को बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ नज़र आती थी. एंड दिस रिंकल्स वेर रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. हर जगह पूरे चेहरे पे वो रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थी. No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. तो ऑथर को ये लगता है कि बहुत हमने कभी उनको दूसरे फॉर्म में देखा ही नहीं है. उनको हम कभी दूसरी चीज़ में तरह से हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं. और हमें ऐसा लगता है कि वो आज जिस फॉर्म में हैं 20 साल पहले भी वैसे ही थी, ऐसे ही रही होंगी. बहुत टेरिबली, बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं वो, और उससे ज़्यादा कोई ओल्ड या बूढ़ा नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर की जो एज की कंडीशन है वो बताई कि उनकी ग्रैंड मदर कितनी ओल्ड दिखती थी और कितनी वो जिसको कहते हैं कि एक फिगर था जिसमें उन्हें ऐसा लगता था कि वो हमेशा ऐसे ही रही होंगी. और इसके साथ साथ फैट भी थी, शॉर्ट भी थी और स्लाइटली बेंट भी थी, जो थोड़ा सा एक झुकी हुई थी. तो टोटल एक पोर्ट्रेट जो पिक्चर खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के सामने रखा है वो इस तरह का है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. उनके हिसाब से लगता है कि वो कभी प्रिटी, कभी खूबसूरत, सुंदर नहीं रही होंगी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. शी हॉबल्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चेहरे की एक क्यूटनेस, जो प्रिटीनेस है वो कभी नहीं रही होगी. ब्यूटीफुल रही होंगे, चेहरे की ब्यूटी नहीं रही होगी, लेकिन वो वैसे बहुत ब्यूटीफुल हैं. ऑथर का कहना है कि वो ऐसे बहुत ब्यूटीफुल हैं अपने वेज में, अपने तरीक़ों में, बच्चों के साथ बिहेवियर, बड़ों के साथ नेचर जो है वो उससे वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ऐसे प्रिटी नहीं रही होंगी जो एक चेहरे से सुंदरता दिखती है. शी हॉबल्ड about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. Okay, so अब यहाँ पे बता रहे हैं ऑथर कि वो हमेशा घर में घूमती रहती थी, वॉबल्ड करती थी, वॉक करती थी. हॉबल्ड क्या होता है? हॉबल्ड का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े तरीके से चलना, ऑकवर्ड तरीके से चलना, लंगड़ाते हुए चलना. वो हमेशा ऑब्वियसली इतनी ओल्ड थी कि वो अपने पोस्चर को संभालने के लिए वो क्या करती थी कि एक हाथ को अपने वेस्ट पे रखना, अपने कमर पे रखती थी ताकि वो अपने बैलेंस को बना सके, और दूसरे हाथ में उनके रोजरी यानी माला होती थी. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यू कैन सी रोजरी होती थी, और उस रोजरी को वो हमेशा बीड्स को जो है वो कुछ ना कुछ उस बीड्स को घुमाते हुए वो कुछ अपने मुंह से पढ़ती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर scattered untidily over her pale puckered face. ठीक है ना, पेल puckered face, wrinkled चेहरे के ऊपर. यहाँ पे सिल्वर लॉक्स का मतलब ताला नहीं, सिल्वर लॉक्स यानी वहाँ पे उनके सफ़ेद बाल. तो हर सिल्वर लॉक्स वे स्कैटर्ड, पूरे चेहरे पे, रिंकल्ड चेहरे पे क्या थे कि बिखरे हुए बाल थे उनके. कौन सफ़ेद बाल जो थे वो इधर उधर बिखरे हुए थे. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. और उनकी जो लिप्स थी वो हमेशा एक प्रेयर एंचैंट करती थी. मुंह में उनके हमेशा कुछ वो माला जपते हुए कुछ मुंह में प्रेयर्स चलती रहती थी. यस, शी वॉज ब्यूटीफुल. ये सारी एक्टिविटीज़ से ऑथर को अपनी ग्रैंड मदर बहुत ब्यूटीफुल लगती थी. अब समझ में आया बच्चों? दिस इज हाउ ऑथर हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज ग्रैंड मदर. वहाँ पे उन्होंने फेशियल या फिज़िकल ब्यूटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया. जो ग्रैंड मदर का जो एक तरीका था, जो ग्रैंड मदर की एक्टिविटीज़ थी, उससे वो ऑथर को अपनी ग्रैंड मदर बहुत ब्यूटीफुल लगती थी. फिज़िकल अपीयरेंस से नहीं, लेकिन अपने इस तरह के सारे जेस्चर्स से वो बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगती थी. शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक फ्रेज दिया हुआ है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. तो शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं ऑथर, क्योंकि ग्रैंड मदर का चेहरा या ग्रैंड मदर को देख के ऐसा लगता था कि ठंडी में
जो माउंटेन्स होते हैं, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स की जो ठंडक होती है तो उसमें क्या होता है, बर्फ़ होती है, पूरी वाइट बर्फ़ लगी स्नो पड़ी होती है, तो उससे क्या होता है, बहुत किस तरह का एक फीलिंग आती है, बहुत काम और पीसफुल फीलिंग आती है। तो बिल्कुल ग्रैंड मदर को देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत पीसफुल कंडीशन में है और कंटेंटमेंट में है। कंटेंटमेंट यानी बहुत सेटिस्फाइड है, उनके चेहरे पे कोई आपाधापी नहीं है, उनके चेहरे पे किसी तरह की फ़िक्र नहीं है, और ये सारी चीज़ें उनको देख के ऐसा लगता है क्योंकि ग्रैंड मदर जो है बहुत पीस में है और बहुत सेटिस्फाइड लाइफ वो लीड कर रही हैं। तो ये था, ऑथर ने अपने ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया यहाँ पे, and he is very attracted towards his grandmother, towards the beauty, towards her gesture. Okay, so now coming on to next slide we will move. Now my grandmother and I were good friends. अब यहाँ पे जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि ग्रैंड मदर और वो बहुत अच्छे दोस्त थे, और ये दोस्ती कब से हुई इन लोगों की, सॉरी हाँ, माई ग्रैंड मदर एंड आई वे गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly together. ठीक है ना, इनके पेरेंट्स जो थे उनको छोड़ के बचपन में छोटे समय में ग्रैंड मदर के पास छोड़ के पेरेंट्स सिटी की तरफ पलायन कर गए, सिटी की तरफ चले गए रहने के लिए, वहाँ पे अपने आप को सेटल करने के लिए। और जब तक वो लोग सिटी में थे ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के साथ था, और इस दौरान ऑथर का और ग्रैंड मदर का, राइटर और ग्रैंड मदर का बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन, एक एसोसिएशन हुआ, और वो बहुत अच्छे दोस्त बने, हमेशा साथ रहते थे। कैसे कैसे, शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, पहले वो उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। देन शी हैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स, मॉर्निंग प्रेयर्स वो करती थी, ओल्ड एज में थी, मॉर्निंग प्रेयर्स होती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस यानी वेरी बोरिंग, मतलब डेली वही चीज़, उसी तरह का मोनोटोनी, एक जैसा कोई प्रेयर, भजन या कीर्तन के फॉर्म में करती थी। वाइल शी बेथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। तो वो जब मुझे नहलाती थी और ड्रेस अप वो करती थी, उस समय वो मॉर्निंग प्रेयर करती थी, और वो मॉर्निंग प्रेयर या जो मॉर्निंग का प्रेयर का जो सॉन्ग होता था वो उस समय गुनगुनाती थी, और वो ये सोचती थी कि ऑथर भी वो सुन के उसको लर्न कर लेंगे और बाय हार्ट हो जाएगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। ऑथर रोज़ सुनते थे, क्यों सुनते थे, क्योंकि उनको अपनी ग्रैंड मदर की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, ही लव्ड हर वॉइस, लेकिन वो इसलिए नहीं सुनते थे कि उनको वो याद हो जाए, उनको उसकी कोई फिक्र नहीं थी, ही वॉज नॉट नेवर बॉदर्ड, बट ही ओनली लिसन टू दैट सॉन्ग बिकॉज ही जस्ट लव्ड his grandmother's voice. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. अब पहले कैसे, उस दौर में लोग कैसे पढ़ने जाते थे, बच्चे कैसे जाते थे, एक तख्ती होती थी, उस तख्ती के ऊपर वुडन स्लेट होता था, उसको वुडन स्लेट कहते हैं। अब तो आप डिजिटल हो गए सारी चीज़ें, आप बहुत आराम से टेक्निकली एक लैपटॉप या आप एक टैब हाथ में लेके आराम से पढ़ सकते हैं, वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं। बट उस ज़माने में क्या होता था कि लकड़ी की तख्ती के ऊपर मिट्टी से उसको एक कोटिंग कराई जाती थी, उसको सुखाया जाता था, और फिर उसके ऊपर इंक से और पेन से लिखा जाता था, और इंक भी जो होती थी इंक पॉट में भरी होती थी, पेन डुबा डुबा के उसमें आप डिप करके आप लिख सकते थे। तो ग्रैंड मदर पूरी ये तैयारी करके ऑथर को देती थी, और इस तरह से वो पूरे समय अपने ग्रैंडसन के साथ अटैच रहती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, थिक स्टेल चपाती, मोटी स्टेल यानी रात की बची हुई रोटियां, जिसको आप स्टेल यानी बासी भी कह सकते हैं। तो चपाती पे उसको थोड़ा सा घी मक्खन लगा के और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल के ये उनका ब्रेकफास्ट होता था, और वो स्कूल चले जाते थे दोनों, ग्रैंड मदर एज वेल एज ऑथर। She carried several stale chapatis with her for the village dogs, और वो ये चपाती
विलेज के डॉग्स के लिए भी लेके जाती थी। कुछ बची हुई रोटियां होती थी, बासी रोटियां होती थी, तो वो ऑथर के साथ जब वो जाती थी तो वहाँ साथ में वो रोटियों को भी लेके जाती थी, जिससे कि वो उन डॉग्स को भी फीड कर सके। सो दिस वाज द एसोसिएशन बिटवीन द टू। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। My grandmother always went to school. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. वो हमेशा जाती थी अपने ग्रैंडसन के साथ, ग्रैंडमदर हमेशा ऑथर के साथ वो जाती थी स्कूल। और वो इसलिए जाती थी कि वहाँ पे जो मंदिर था, टेम्पल, वो स्कूल के साथ अटैच था। एंड द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। वहाँ पे प्रेस्ट जो थे वो उनको अल्फ़ाबेट सिस्टम भी पढ़ाते थे और प्लस सुबह की प्रार्थना भी कराते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet of prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. ठीक है ना, वो मंदिर में बैठ जाती थी और जो रिलीजियस बुक्स होती थी उसकी जो उसके अंदर की जो लिखे हुए टेक्स्ट होते थे उसको स्क्रिप्चर्स कहते हैं। तो ग्रैंड मदर जब तक बच्चे पढ़ रहे होते थे और बच्चे वरांदे में पढ़ते थे, वहाँ पे उनको मॉर्निंग प्रेयर्स के साथ अल्फ़ाबेट सिस्टम और प्रेयर्स और एक साथ कोरस में गाना सिखाया जाता था। कोरस में ये प्रेयर्स को गाने को की प्रैक्टिस कराई जाती थी। और उस समय तक उनकी जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी राइटर की, वो अपना अंदर बैठ के मंदिर में स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, पुराण जो भी है रिलीजियस बुक्स वो पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब क्या हो रहा है, जब सारी चीज़ें हो गई, स्कूल भी हो गया, दादी का पढ़ना भी हो गया, then they returned back to home. तो रास्ते में वो जब जाते हैं तो वही डॉग्स उनको मिलते हैं जो डॉग्स को उन्होंने चपातियाँ फीड की थी, और बिल्कुल वहाँ पे क्राउलिंग, चिल्लाना डॉग्स का और लड़ना देखते हैं। और इससे ये ऑथर बता रहे हैं कि वो हमारे घर तक चले आते हैं ताकि उस लालच में कि हमें और भी खाना मिल सके। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट हैपेंड When my parents were comfortably settled in the city। तो ये ऑथर, इस अभी तक आपने जो देखा वो ऑथर की लाइफ थी विलेज में उनके ग्रैंड मदर के साथ, जो बहुत पीसफुल लाइफ थी। और ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा अटैच थी अपने ग्रैंडसन से, ऑथर से। और वहाँ सारी गतिविधियाँ आपने देखी, या वहाँ पे ग्रैंड मदर से ऑथर ने क्या क्या सीखा, किस तरह से पढ़ना सीखा, लाइफ को कैसे जीना सीखा। ग्रैंड मदर के साथ इंटरेक्शन बहुत इंटेंस था। लेकिन अब ये दूसरा फेस ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं, दैट वी विल सी इन दिस फेस इन अनदर स्लाइड। ओके।